plan that we are going to discuss is for 2027, for students who are preparing for 2027, and in this plan I want you to give around 5 hours, 4 to 5 hours daily. अगर 4 to 5 hours daily नहीं दे पा रहे, जैसे some students may be working in some site, वो 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन खाली रहते हैं. In a week, give 40 hours. That is what we need. So please explain completely in English. Okay, Arun, I'll do that. I'll ensure that I'm speaking everything in English. In case some student is facing problem in English, they can ask me to repeat it. I'll repeat it in Hindi as well. Okay, so first thing that I need is this. If you cannot dedicate this much time, don't start preparing immediately. Like, don't start targeting 2027. Rather, start reading books. If you can give only 2 hours every day. So you right now you are not in a position to prepare for civil services examination in a full-fledged manner. I'm not saying you should not prepare, but for next few months, till the time you are not able to find enough time, you start reading books, start enjoying the process. Read history, read polity, read geography, understand a bit of economy, not for exam, just for your understanding, so that you remain in the system. If you want to prepare seriously for 2027, you should be able to give these 4 to 5 hours. Now, your preparation I'm dividing into 5 phases. Let's say today is 1st of November 2025 से लेकर August 2027. August 2027 में will be writing mains. ये अपना target है. यहाँ पे I'm dividing your preparation in 5 phases. Okay, in the first phase, the first 6 months, November 2025 to April 2025. ये 6 months है. In these 6 months, I want you to finish your foundational courses. Foundational courses, foundational subjects में क्या है? History, geography, polity, economy. ये 4 चीजें and ethics. These are the 5 things that we should be completing in first 6 months. है ना? अगर time मिलता है तो science and tech and environment also. अगर नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं, we can do it later also. Okay, now how should we do it? देखो, for 6 days, Monday to Saturday, study for 3 hours a day and revise for 1 or 2 hours every day. जो पढ़ा है ना, उसे keep on revising. देखो, revision is important. This one mistake that we have to avoid. What? कि we keep on studying things and we don't revise. आप maybe 4 घंटे पढ़ लो, but revise for 1 hour daily. Everything that you have studied, in the end, revise it once. कि यार क्या हुआ? Overall framework क्या है? Let's understand that. Then on Sundays, in 6 days, you will complete substantial portion, revise the whole thing. And at this time, solve PYQs. Let's say you have started studying Lakshmikant. आपने लक्ष्मीकांत यहाँ पे पढ़ा है, हर रोज भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया है. You've understood something, or you may be doing some classes. You attended 6 classes, you have done its revision, you have made notes, you have done its revision. On Sunday, rather than starting to study something new, first thing that you do is you revise all the things that you have done, solve PYQs. Sunday को, suppose while doing polity, आपने historical background, preamble, fundamental rights इतना पढ़ा है. Fine. Take PYQs of this area and attempt it. See if you are able to do it. If you are not able to do it, you may have to do some value addition in your notes. Do it on Sundays. In the same way, on Sunday, try to write answers. कौन से answers जो पहले पूछे जा चुके? PYQs होंगे. Don't join a test series immediately. Unless it's already part of your GS Foundation course जो साथ में चल रहा है, don't join a separate test series which is not in sync with your preparation. Don't try to make your preparation in sync with the test series in the beginning. That is done in the later stages. If आपकी preparation से sync में, suppose you have joined GS Foundation somewhere and in sync with that there are tests on Sunday, do that. Otherwise, focus first on completing PYQs. So, first phase, phase 1, your foundational preparation. History के साथ art and culture, geography, polity, economy and ethics.
ये 5 चीजें हमें कंप्लीट करनी है पहले 6 मंथ में। साइंस एनवायरमेंट हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इसे बाद में भी कर लेंगे। बट बाय एंड ऑफ अप्रैल दिस इज व्हाट वी शुड बी अचीविंग। ओके, एंड बिकॉज यू आर डूइंग रिविजन एवरी संडे, एट द एंड ऑफ मंथ ऑल्सो गिव 2 days का ब्रेक अपने आप को टू रिवाइज द होल थिंग दैट यू स्टडीड इन द मंथ। ऐसे ही एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ डू दैट। एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ डोंट ओनली गिव यू सिर्फ 2 days, पूरे 7 दिन क्या करो, रिविजन ही करो। सो दैट आपने मान लो फर्स्ट मंथ में हिस्ट्री किया, सेकंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में यू डिड एंशिएंट मिडिवल कल्चर, सेकंड मंथ में यू आर डूइंग ज्योग्राफी, थर्ड मंथ में यू आर डूइंग पॉलिटी। व्हेन यू कंप्लीट पॉलिटी, 7 दिन का ना गैप दो अपने आप को एंड रिवाइज एंटायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगेन बिफोर जंपिंग ऑन टू लेट्स से इकोनॉमी, एथिक्स एक्सेट्रा। तो in 6 months finish this portion, solve PYQs, write answers। फिर क्या करना है? phase 2, focus on optional। now you may be wondering, sir, where is society, social justice, governance, IR, internal security? ये तो आपने छोड़ ही दिया। नहीं, छोड़ा नहीं है, प्लान में चल रहे। पर देखो जनरली क्या होता है ना, मई में आपके वो शुरू होने लग जाते हैं, ऑप्शनल के कोर्सेज शुरू होने लग जाते हैं। अभी आप जब कोई कोर्स ज्वाइन करोगे ना, थोड़ा गड़बड़ रहेगा। तो फ्रॉम मे आई वांट यू टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑप्शनल। यू मे जॉइन अ कोर्स, यू मे डू इट थ्रू सेल्फ स्टडी, यू मे डू इट थ्रू videos available on YouTube, you may do it through videos available on Telegram। here I'm not here to like ये वाला कोर्स खरीद लो, ये सब नहीं। but these 6 months focus on optional। ऑप्शनल का रफली 2.5 आवर्स का क्लासेस होगा आपका। फॉर ऑप्शनल आई जनरली रिकमेंड क्लासेस कर लेनी चाहिए, जहां से भी आप करना चाहें, जैसे भी करना चाहें। फाइंड अ गुड टीचर, डू इट। यू विल हैव 2.5 आवर्स ऑफ क्लासेस, यू विल डू 1.5 आवर्स ऑफ रिविजन। क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसे रिवाइज करते जा रहे हो साथ में। एनीथिंग दैट हैज बीन डन इन क्लास यू शुड बी लाइक आई नो इट। मुझसे पूछ लो, आई नो इट। बट दिस इज ओनली 4 आवर्स, नोटिस इट केयरफुली। Another thing that I want you to do is, in 1 hour, keep revising phase 1। आपने phase 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब कंप्लीट किया है ना, उसे पूरा छोड़ नहीं देंगे 6 मंथ्स के लिए। every day 5 hours, every day 4 hours we are doing for optional, 2.5 hours plus 1.5 hours। 1 घंटा निकालो किसके लिए कि यार मेरा हिस्ट्री पढ़ चुका हूं मैं, लेट मी कीप रिवाइजिंग इट सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट। वंस योर हिस्ट्री रिविजन इज डन, वो 1 आवर में क्या करो, पॉलिटी रिवीजन पे आ जाओ। फिर 1 आवर में क्या करो, ज्योग्राफी पे आ जाओ, फिर इकोनॉमी पे आ जाओ। सो दैट इन दीस 6 मंथ्स व्हाइल योर फोकस इज ऑन ऑप्शनल, थोड़ा सा रिवीजन, नई चीजें नहीं पढ़नी है। मैंने बोला इन द बिगिनिंग ओनली आई सेड यू डू नॉट स्टार्ट विद ऑल 3 थिंग्स एट अ टाइम, यू डू नॉट डू 3 थिंग्स एट अ टाइम। जॉब, ऑप्शनल, जीएस, ये तीनों एक साथ नहीं करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जॉब या फिर कॉलेज एंड ऑप्शनल। बट 1 hour we will keep giving for revising whatever we have done in GS, so that remains new to us। we should be like हाँ ये सब आता है, सबके PYQ सारे आते हैं मुझे। जनरली ऑप्शनल क्लासेस गोज ऑन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो यहां पे आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन रहेंगे। संडे को प्रैक्टिस PYQs, राइट एटलीस्ट 10 आंसर्स एवरी संडे। एंड यहां पे सैटरडे को डू वैल्यू एडिशन इफ नीडेड टू कंप्लीट सिलेबस। तो इसमें इसका फंडा क्या है, देखो मंडे टू फ्राइडे यू हैव स्टडीड, यू हैव रिवाइज्ड, बट ऑन सैटरडे यू मे फील लाइक कि ऑन सैटरडे लुक एट PYQs एंड सी जो आपने पढ़ा है उससे PYQs सारे हो जा रहे हैं क्या। अगर नहीं हो रहे तो यू मे हैव टू डू सम वैल्यू एडिशन। दिस कोर्स मे नॉट बी गुड इनफ, these classes may not be good enough। ऐसा like there are very few teachers जो ना पूरा सिलेबस सिस्टमैटिकली कवर करते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है। तो आप यहां पे क्या करिए, वैल्यू एडिशन। सैटरडे इज फॉर वैल्यू एडिशन, सैटरडे इज फॉर नॉट फॉलोइंग द क्लास, बट क्लास जो हो गया है 5 दिन का उससे देखो रिवाइज आप करते रहे हो। आर यू एबल टू आंसर ऑल द PYQs? इफ देयर इज अ PYQ फ्रॉम दैट टॉपिक यू आर नॉट एबल टू आंसर, do value addition here। and Sunday को practice PYQs, that is write at least 10 answers। आपने इतने टाइम पढ़ा है ना, every day you are studying, then on Saturday you did value addition, you may have read some books, teacher may have recommended you other than classes, you read this book, you do that, and then on Sunday you practice PYQs। meanwhile जो ये 1 hour revision of phase 1 will go on for all 7 days। हम 7 दिन ये 1 घंटा रिविजन करते In 6 months, from May
टू अक्टूबर, मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, ये 5 ही हुए ना, मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर। हाँ, वो थोड़ा नवंबर तक जा सकता है इन 6 मंथ। जनरली ऑप्शनल कोर्सेज 5 मंथ्स का बोलते हैं टीचर, पर 6 महीने चलता है। हमारे यहाँ ऑप्शनल कोर्सेज सारे 6 महीने चलते हैं, सोशो एंथ्रो, तो आपको 6 मंथ्स के लिए ये करना। बट इसमें देखो, यू आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग इन योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यू आर नॉट फॉरगेटिंग दैट, बिकॉज एक तो आपने डेडिकेटेडली उसे 6 महीने पहले पढ़ा है, एंड देन यू हैव केप्ट ऑन रिवाइजिंग इट, सो दैट एट द एंड ऑफ अक्टूबर यू आर नॉट फीलिंग कि यार आई हैव फॉरगॉटन दैट, while you have added optional also. In the third phase, I want you to focus on mains only areas. See, phase 1 पे क्यों आ गया मेरे पास? I want you to focus on mains only areas. जैसे सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये छोटे एरियाज हैं. They take a few classes. इसको कंप्लीट करिए अच्छे से, बिकॉज दिसंबर के बाद क्या होगा, हम थोड़ा प्री पे फोकस करेंगे, तो उससे पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए. नाउ मंडे टू फ्राइडे स्टडी मेंस ओनली टॉपिक फॉर 2 आवर्स एंड रिवाइज इट फॉर 1 आवर. जनरली दीस टॉपिक्स आर स्मॉलर, तो इसमें आपको 3-4 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं. 2 घंटे रोज पढ़ो, 1 घंटे उसे रिवाइज करो. पर ये फिर रिमेनिंग 2 आवर्स आई वांट यू टू गिव फॉर दिस. स्टार्ट डूइंग सीसैट फॉर 1 आवर डेली. सीसैट भी आएगा प्रीलिम्स में, तो 1 घंटे के लिए करना शुरू कर दीजिए, एंड कीप ऑप्शनल, keep doing optional for 1 hour daily. That is also crucial. That's also important. आप ऑप्शनल भूलना नहीं है. ऑप्शनल आपने 6 महीने कर लिया, रिवाइज किया, पीवाईक्यूज लिखे, सब किया है, बट उसे भूलना नहीं है. इज इट पॉसिबल टू टेक आउट 2 hours here? Yes, बिकॉज जो ये टॉपिक्स है ना, सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, दे आर नॉट बिग एरियाज. So that they can be done in 2 hours with 1 hour of revision. You can keep working. Monday to Friday do this. Saturday को revise entire week's GS coverage. Sunday को revise entire week's optional coverage. आप optional revise करते रहते ना, Sunday को से दोबारा revise करो. तो देखो, we are not stopping to study optional in October. हम उसको बाद में भी revise करते रह रहे हैं. This is the third phase. By end of third phase, आप mains के लिए kind of prepared है. अभी आपने टेस्ट नहीं लिखे, टेस्ट सीरीज नहीं किया है, बट यू हैव रिटन पीवाईक्यूज, यू हैव रिटन मेंस आंसर्स, एंड यू आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड. अब हम आएंगे फोर्थ फेज में, विच इज द प्रीलिम्स फेज. देखो, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब पढ़ा है पहले. साइंस, टेक, एनवायरमेंट, यू मे हैव स्टडीड और यू मे नॉट हैव स्टडीड. तो अगर आप पहले कंप्लीट नहीं कर पाए हो, अभी पहले साइंस, टेक, एनवायरमेंट कंप्लीट करिए, because they may take more time, and then keep revising history, geography, polity, economy. Keep doing this. In 3 months, 3 months means Jan, Feb, March में revision, pre की तैयारी पूरी complete करिए. Create a smart revision loop. Every 3 day you revise, every 7 day you revise, every 30 day you revise, every 90 day you revise, so that at the end of March आपका पूरा पढ़ाई हो रखा होगा. और इस फेज में you may also have to give 2 hours every day on CSAT. Now देखो, अब CSAT पे 2 hours या half an hour या 1 hour every day, it will depend on your performance. Your performance in the sense, it will depend on how good you are at CSAT. There may be some students जो रोज आधा घंटा देंगे और उसमें भी they're like comfortable. There may be some students who are very weak in maths, and they may have to give 2 hours, but don't give more than this time. इस अभी join a test series और उसे सिस्टमैटिकली खत्म करो. आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज कर लिए हैं सारे पहले, तो इस टाइम यू शुड जॉइन अ टेस्ट सीरीज. इस टाइम लॉट्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेक ओपन मॉक टेस्ट्स, which is available. Anyone can register and attempt those tests. Do that. And if possible, लास्ट 1 मंथ में, कब, अप्रैल में आप रिवीजन करिए, मई में सबैटिकल ले लीजिए जॉब से. एग्जाम से 1 महीने पहले आप सबैटिकल लीजिए. दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन लास्ट 1 मंथ आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट, सारे रिविजन्स वगैरह इफेक्टिवली करने पड़ेंगे. इफ यू हैव स्ट्रेस एसोसिएटेड विद जॉब, इफ यू हैव स्ट्रेस एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स, दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन द प्रिपरेशन. तो मैं देखो, अभी तक बिफोर 2027 आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू टेक लीव्स, बट लास्ट 1 मंथ, मई 2027 में यू शुड बी टेकिंग. अगर 1 महीने का नहीं मिल रहा, 2 वीक का मिल रहा है, लीजिए. क्योंकि ना, आपने देखो 1.5 साल इतनी पढ़ाई करी है, इट्स इंपॉर्टेंट कि एक बार बस पूरा उसमें घुस जाओ. डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड.
जॉब के साथ करते रहे हो, ऑल गुड, बट दिस वुड बी क्रूशियल, दिस वुड बी हियर फोकस एंटायरली ऑन प्रीलिम्स। और यहां पे आई हैव नॉट रिटन इट, बट आई जनरली दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स। अगर आप टेस्ट में अच्छा कर रहे अगर आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, देन कीप रिवाइजिंग योर ऑप्शनल फॉर 1 hour a डे। ऑप्शनल को ना पूरा 5-6 महीने के लिए नहीं छोड़ना है। जैसे यहां पे प्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो मेंस के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं, बट ऑप्शनल को दिसंबर के बाद पूरा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देंगे अगर हमारे प्री के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। विल प्रायोरिटाइज प्री प्रिपरेशन इन दिस फेज, बट इफ इन योर प्री टेस्ट यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, यू आर कंफर्टेबल, you don't have to touch optional. Then would come the last phase, the mains phase. अब यहां पे ना देखो, मेंस में एटलीस्ट जब रिजल्ट आ जाए प्री का, उसके बाद से ना अगेन मेडिकल लगाओ, कुछ करो, बट मेंस का प्रिपरेशन के लिए ना थोड़ी मेहनत ज्यादा चाहिए होती है, पार्ट टाइम नहीं हो पाता है। तो वाइल पूरे टाइम आप पढ़ते रहे हो, यहां पे लास्ट 2 months ट्राई टू अगेन take leave. In this period, I cannot give you a plan only for 5 hours a day. That won't be enough. 4 to 5 hours optional revision, 4 to 5 hours of GS and SC revision. These are the things that you'll have to do. आपको 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा. Every Sunday attempt 2 टेस्ट, एक GS या SC का और एक ऑप्शनल का. आपको ये करते रहना पड़ेगा. तो दो द प्लान इज फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स, बट मैं जितने वर्किंग एस्पिरेंट्स को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो मेंस के टाइम 2-3 महीने पूरा छुट्टी लेते हैं. जिनको छुट्टी नहीं मिल रही होती है वो मेडिकल लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, पर वो लास्ट में 2-2.5 महीने छुट्टी लेते हैं. तभी ना देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस नीडेड, यू विल बी एबल टू डू इट इफ दिस हैपेंस. तो इन दिस फेज 1 half of the day give to optional. संडे को उसी फर्स्ट हाफ में ऑप्शनल का टेस्ट लिखो, सेकेंड हाफ ऑफ द डे गिव टू जीएस, और इससे संडे को उसी जीएस एसए का टेस्ट लिखो. प्रिपरेशन आपकी पहले हो चुकी है इन सब्जेक्ट्स की. हियर यू शुड नॉट बी नीडिंग टू स्टडी न्यू थिंग्स, रादर यू शुड बी रिवाइजिंग दोज थिंग्स एंड राइटिंग टेस्ट, रिवाइजिंग दोज थिंग्स एंड राइटिंग टेस्ट्स. If you do it systematically, there would be high chances that you clear exam in the first attempt. जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चा अपना पूरा मेंस का तैयारी ना जून जुलाई अगस्त के लिए छोड़ देता है, एंड देयर दे फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर. दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. ओके, so these were the 5 phases of exam.